Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए, और अमाउंट क्या रहेगी ये भी बताओ इस प्रोजेक्ट की। सो टेल मी बोथ थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज TCIL. Ministry of Defense, they have signed a contract with TCIL, that is your Telecommunication Consultants India Limited, and it is to acquire Digital Coast Guard project under Buy Indian category. And the amount for which this contract was signed is 588.68 crore rupees. Let me show you here. It is Ministry of Defense. They signed this contract worth 588.68 crore rupees with TCIL, that comes under Ministry of Communication, to acquire Digital Coast Guard project under Buy Indian category. Now if we talk about this project, you can see here there are the this project includes establishment of a disaster recovery data center, amplification of connectivity across ICG sites, and also for the development of the enterprise resource planning system. This also marks the establishment of a tier 3 standard data center with the latest technological capabilities in order to make sure development in that area, right? Then if we talk about TCIL, that is Telecommunications Consultants India Limited, here who is the chairman and managing director? He will be Sanjeev Kumar. Headquarter is in New Delhi and it was established in 1978. नेक्स्ट बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। इन्होंने अभी कौन सा एडिशन लॉन्च किया है IFSCA इन्फिनिटी फोरम का? तो याद रखेंगे इनके द्वारा अभी सेकेंड एडिशन लॉन्च किया गया है इन्फिनिटी फोरम का, राइट? सेकेंड एडिशन 2023 में हुआ था ये। लोकेशन क्या रहेगी? IFSCA जिफ्ट सिटी, जो कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में, राइट? IFSCA में हमें ये देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ देखो आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये तो था सेकेंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन के बारे में भी याद रखेंगे का ये जो इन्फिनिटी फोरम हुआ था IFSCA का, ये कहाँ हुआ था? 2021 में हुआ था, दिसंबर के महीने में। इसका एम क्या है? ताकि जो बिजनेसमैन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वर्ल्ड के लीडिंग माइंड्स हैं ग्लोबली, उनको एक साथ लाया जा सके, एंड जो टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करके फर्दर ले जाते हैं, राइट, उससे रिलेटेड हम कैसे नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकें एंड उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट? तो आप यहाँ देख सकते हैं PM मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ IFSCA's इन्फिनिटी फोरम। कहाँ पर हुआ था ये? गांधीनगर जिफ्ट सिटी में IFSCA के द्वारा कराया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर कौन है? IFSCA अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड
जिफ्ट सिटी के द्वारा, जो कि लोकेशन भी रहेगी इसकी। इंटरनेशनल पार्टनर ब्लूमबर्ग रहेगा। डोमेस्टिक पार्टनर की बात करें तो फिक्की, ICAI, ICSI एंड यहाँ पे नॉलेज पार्टनर रहेगा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो कि हम बोलते हैं BCG। थीम क्या रहेगी? जिफ्ट, GIFT, IFSC, नर्व सेंटर फॉर द न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका कि जो वर्ल्ड के बिजनेस माइंड्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, राइट, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सबको साथ में लाया जा सके एंड यहाँ पे आइडियाज़ को डिस्कस किया जा सके कि कैसे हम आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। करेक्ट। चलिए फिर अगर मैं IFSCA की बात करूं, यहाँ के चेयरमैन कौन रहेंगे? के राजा रमन। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? जिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने अभी होस्ट किया UNFCCC COP28? तो मेनली पूछा जा सकता है कि COP28 अभी किसके द्वारा कराया गया था? तो दुबई में हुआ था, UAE में। पहले तो आंसर यही हो गया, राइट। दूसरा COP28 है तो हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का कौन सा एडिशन था? ये 28th एडिशन था। या इसका कौन सा एडिशन हमने देखने को मिला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का? ऑन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये 28th एडिशन था। 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। 70,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया अक्रॉस 200 कंट्रीज। 200 कंट्रीज से भी ज़्यादा में से 70,000 ऐसे डेलीगेट थे जिन्होंने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया। इसी के दौरान कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे अभी 7th एडिशन ऑफ ईयर बुक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, इसको रिलीज किया गया, राइट, COP28 के दौरान दुबई, UAE में। फिर यहीं पे याद रखेंगे, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, UAE के द्वारा ही अभी 2 गीगावाट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया। क्या नाम रहेगा उसका? अल डाफरा। ये अल डाफरा क्या है? अल डाफरा सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हो गई हैं। एक तो 28वीं COP कहाँ पर हुई? दुबई, UAE में, राइट। 7वां एडिशन ऑफ ईयर बुक ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन रिलीज किया गया। UAE के द्वारा 2 गीगावाट का अल डाफरा नाम का सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट प्रोजेक्ट रहेगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे बताया गया कि 2023 जो था ना, सबसे हॉटेस्ट ईयर था। लेट मी राइट, 2023 सबसे हॉटेस्ट ईयर था। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, वो कि इंडिया कार्बन एमिशन में 3rd नंबर पे आता है ग्लोबली, राइट। इंडिया 3rd हाईएस्ट कार्बन एमिटर रहा, 3rd हाईएस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विनबैक्स पर आ जाते हैं। विनबैक्स ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 4th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, विनबैक्स का, जो कि इंडिया एंड वियतनाम के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, राइट। इंडिया एंड वियतनाम के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, करेक्ट। पहली चीज़ तो ये मार्क करके चलेंगे। लोकेशन क्या रहेगी, कहाँ पे सी एक्सरसाइज हुई थी? हनोई में, वियतनाम में, राइट। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 11, ये एक्सरसाइज हुई नहीं थी, अभी चल रही है एक्चुअली। 11 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। एंड इसी में याद रखेंगे, अगर पूछा जाए, ये तो था 4th एडिशन, अगर पूछा जाए पहला एडिशन कब और कहाँ पर हुआ था, तो 2018 में हुआ था पहला एडिशन। और लोकेशन क्या थी? जबलपुर, मध्य प्रदेश में हमें ये देखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है RITES। इन्होंने भी एक स्पेक्ट साइन किया CFM मोजाम्बिक के साथ, ताकि 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन्स को यहाँ पे डिलीवर किया जा सके टू CFM मोजाम्बिक। आई रिपीट, RITES, जो कि नवरत्ना शेड्यूल A CPSC है, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है CFM के साथ ऑफ मोजाम्बिक, ताकि इनको 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन्स डिलीवर किया जा सके। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रहेगी $37.68 मिलियन, या फिर हम बोलें 314.1 करोड़ रुपीस। अगर RITES की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे राजीव मेहरोत्रा। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा, एंड इसको 1974 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है कि किस बैंक ने भी लॉन्च किया एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन। नारी क्या होता है? नारी को वीमेन बोलते हैं, राइट।
तो याद रखेंगे महिलाओं के लिए एक नारी शक्ति सेविंग अकाउंट अभी लॉन्च किया गया। किस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। जो भी वीमेन 18 प्लस है एंड वो खुद इंडिपेंडेंट है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? रजनीश कर्नाटक, एंड इन्हीं के द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। अगर इसी से रिलेटेड यहाँ पर देखें, ये ऑफर करता है काफ़ी सारे बेनिफिट्स दैट विल इंक्लूड डिस्काउंटेड हेल्थ इंश्योरेंस, वेलनेस प्रोडक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैसिलिटीज फॉर अ प्रीमियम सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। लॉकर फैसिलिटीज़ में भी डिस्काउंट मिलेगा इनको फॉर गोल्ड एंड डायमंड, एंड यहाँ पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है इनको ऑफ अप टू 1 करोड़ रुपीज़। ये ऑफर करते हैं फ्री इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, लोअर यूसेज ऑफ लिमिट ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़ ऑफ ऑन पॉइंट ऑफ सेल, ट्रांजैक्शन एंड प्रोफेशनल जो पर्सनल लोन्स मिलेंगे उन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो भी यहाँ पे कम मिलता है। तो हम देख ही चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 1906 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। और यहाँ पे एक टैगलाइन याद रखेंगे रहेगी, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट आ जाता है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड ये कंपनी रहेगी। इनके द्वारा अभी एक 80 करोड़ रुपए की डील साइन हुई इंडियन बैंक के साथ टू डिप्लॉय CMS क्या है? कैश मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम होगा ना, ये AI पावर्ड रहेगा बाय eMACH.ai, करेक्ट। मेन एम क्या है? हम जानते हैं AI को आज की दुनिया में हर कंपनी यूज़ करना चाहती है बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है एंड बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड कराता है, करेक्ट। तो इसी के लिए अभी रिसेंटली जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ऑटोमेट किया जा सके, एंड फॉर द सेम रीज़न अभी 5 साल के लिए डील साइन की गई फॉर 80 करोड़ रुपीज़ इंडियन बैंक ने करी। किसके साथ? इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के साथ, ताकि इनके कैश मैनेजमेंट सिस्टम को पावर किया जा सके बाय eMACH.ai, ठीक। अगर मैं बात करूं इंडियन बैंक की, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? शांतिलाल जैन, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में, एंड इसको 1907 में इस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है RBI रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस इंप्रूव्ड फॉर द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर, कंबाइंड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट स्टूड एट 2.8% ऑफ द GDP। ये कह रहे हैं RBI के द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 22 और 23-24। ये रिवेन्यू थीम के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे बताया गया कि जो स्टेट फाइनेंसेस थे ना 2021-22 में, दे सस्टेन इन 2022-23 विद द कंबाइंड स्टेट ग्रॉस डेफिसिट स्टूड एट 2.8% ऑफ द GDP, ठीक। एंड यहाँ पे जो फिस्कल आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है आने वाले 2024 के लिए भी, एंड यहाँ पे देखा जा रहा है कि इंडिया काफ़ी अच्छे स्केल से ग्रो कर रहा है ग्लोबली, एंड इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो इतने बड़े स्केल से ग्रो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हाई है, राइट, लेकिन वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है ना, पिछले 2-3 महीनों से एशिया में बेस्ट परफॉर्म कर रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना आपको। फिर अगर मैं RBI की बात करूं, तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास, डेप्टी गवर्नर्स 4 होते हैं यहाँ पर। इसको 1 अप्रैल को इस्टेब्लिश किया गया था इन 1935, एंड मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एको जनरल इंश्योरेंस, राइट। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू सेल कार एंड बाइक इंश्योरेंस। तो एको ने पार्टनर किया फ़ोन पे के साथ, ताकि जो फ़ोन पे के कस्टमर्स हैं, ये राइट, जो फ़ोन पे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उनको हम ऑप्शंस दे सकें टू बाय वेरियस कार एंड बाइक इंश्योरेंस। जैसे बैंकरेंस होता है, बैंकरेंस में क्या होता है आपका? बैंकरेंस में होता है आपका कि जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं ना, उनको इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाती है, राइट, उनको बेची जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या, ये भी एक तरीके, बैंकरेंस नहीं कह रहा हूँ मैं ये, लेकिन एक तरीके का वही है, बिकॉज फ़ोन पे एक एप्लीकेशन है, इनके कस्टमर्स होंगे, तो एको यहाँ पर उनके कस्टमर्स को बाइक एंड कार का इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट? तो वर्ल्ड का पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया। कंट्री पूछा जाए तो चाइना, ठीक। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लिया कि कंपनी का नाम बताओ, तो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। रॉकेट का क्या नाम रहेगा जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया? जूक 3, याओ 3। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक।
ठीक है, कि इस कंट्री ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला लिक्विड मीथेन पावर्ड रॉकेट, तो वो चाइना के द्वारा था। और याद रखेंगे जो रॉकेट था ना, इसमें लिक्विड मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन इससे पावर किया गया था, बिकॉज लिक्विड मीथेन पहली बार यूज किया गया इसे रॉकेट में लॉन्च करने के द्वारा। तो आप ये रहेगा कंट्री चाइना एंड लैंडस्केप, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं लैंडस्केप टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, इन्होंने लॉन्च किया जूक 2 याओ 3, वर्ल्ड का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल कैरिंग 3 सैटेलाइट्स फ्रॉम जिक्वेंट सैटेलाइट लॉन्च सेंटर फ्रॉम चाइना। ठीक, और इससे लैंडस्केप वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई टू लॉन्च सैटेलाइट यूजिंग अ रॉकेट फ्यूल्ड बाय मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। अब इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखेंगे, आई स्पेस, इन्होंने कंप्लीट किया चाइना का पहला रियूजेबल रॉकेट टेस्ट। हम बात कर रहे थे चाइना वर्ल्ड का पहला कंपनी जिन्होंने लिक्विड मीथेन पे रॉकेट लॉन्च किया, चाइना, और चाइना का पहला रियूजेबल रॉकेट टेस्ट किसके द्वारा किया गया, आई स्पेस के द्वारा। एंड इन्होंने हाइपरबोला 2 लॉन्च किया जो कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से ही पावर्ड था। एंड ये वर्ल्ड का पहला आई स्पेस के द्वारा, वर्ल्ड का नहीं, चाइना का पहला रियूजेबल रॉकेट लॉन्च इवेंट टेस्ट था। वर्ल्ड का पहला कौन था, स्पेस एक्स ने करा था, राइट, जो उन्होंने वापस से बूस्टर्स को यहाँ पे फैल्कन 9 के बूस्टर्स को लैंड कराया था। उससे क्या होता है, रियूजेबल रॉकेट बन गए थे, जो कॉस्ट कटिंग हो जाती है आपके स्पेस में जाने के लिए, वो उससे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप रॉकेट्स को बार बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। तो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये हमारे 14th फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, इनके द्वारा भी एक टाइप बुक को रिलीज किया गया। बुक का नाम है नए भारत का संवाद। इस बुक को ऑथर किसके द्वारा किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया था। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो कि न्यू दिल्ली में, यहाँ से इस बुक को रिलीज किया गया। एंड ये जो बुक है ये कंपाइलेशन है ऑफ स्पीचेस ऑफ नरेंद्र मोदी ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ऑथर रहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रिलीज की गई फॉर्मर 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा। एंड कहां पर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एंड जो इंपॉर्टेंस है माउंटेन्स की इन टू डेवलपिंग ऑफ लाइफ, इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम रहेगी रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। फिर यहीं पे याद रखेंगे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये डे, 2003 में ऑब्जर्व किया गया था 11 दिसंबर को। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। 12 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज की जा सके अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलिटी इन इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे ये डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2017 में। नेक्स्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 12 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स इन अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड हेल्थ फॉर ऑल। जैसे हम जानते हैं इंडिया में जो एक्सेस है टू मेडिकल फैसिलिटीज़ वो बहुत ईजी है, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे कनाडा जैसी कंट्री में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। रीज़न बीइंग, बेशक वहाँ डॉक्टर होते हो लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी में भी अगर आप जाएंगे ना तो आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं जस्ट टू गेट ट्रीटेड। बहुत एक तरीके से देखे जाए अगर हम इंडिया और कनाडा को कंपेयर करें तो आप देखेंगे इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है ना वो बहुत मच बेटर है, 1000 टाइम्स बेटर मैं आपको बोलूँगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ चाइना, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कनाडा। क्योंकि लोगों को वहाँ वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। एंड अगर नंबर भी आता है ना, आपको ऐसा समझिए अगर आपको एक्सरे भी कराना पड़ जाएगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जो कि कई महीनों की अपॉइंटमेंट हो सकती है, राइट। तो उससे बेटर तो अपना इंडिया है कि आप यहाँ से बाहर निकलो कहीं पे भी जाके आप अपना एक्सरे, अगर आपको कुछ नहीं भी है हो रखा ना आप तब भी जाके एक्सरे करा सकते हैं। आप ये समझिए इंडिया में इतना बेटर, इतना अच्छा आपका एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इसीलिए ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जा सके एंड उसको इंप्रूव किया जा सके पर्टिकुलर एरिया में। तो 12 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं हम। पहली बार 2018 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ स्कीम्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई जो कि है भगवंत मान सरकार त्वाड़े द्वार। त्वाड़े द्वार मतलब तुम्हारे दरवाजे पे, डोर स्टेप पर, राइट। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन सेंट्रिक स्कीम रहेगी। यहाँ पे 43 सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स को डिलीवर किया जाएगा डोर स्टेप पे टू द सिटीजन्स ऑफ पंजाब। और इस स्कीम को आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, भगवंत मान एंड अरविंद केजरीवाल जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं
आम आदमी पार्टी के जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के एंड आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेयर हैं, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया गया। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम की जो अमाउंट रहेगी वो है 120 रुपीज़ प्लस आपके ये फीस रहेगी फॉर सर्विस, जिसमें आपके गवर्नमेंट फीस ऐड हो जाएगी एंड फैसिलिटेशन चार्जेस इसमें ऐड हो जाएंगे, एज वेल एज आप हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं 9 से लेके 5, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 588.68 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद TCIL फॉर डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ IFSC's इन्फिनिटी फोरम। UAE ने होस्ट किया 28th UNFCCC COP28। विनबैक्स ये क्या था, 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम हनोई में हुई थी। RITES इन्होंने साइन किया एक पैक्ट विद CFM मोजाम्बिक ताकि 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन्स को डिलीवर किया जा सके। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक्सक्लूसिव सेविंग बैंक अकाउंट जो कि है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन। इंटेलेक्ट इन्होंने एक साइन किया 80 करोड़ रुपीस का डील विद इंडियन बैंक टू डिप्लॉय CMS राइट कैश मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट विल बी पावर्ड बाय AI। देन RBI की रिपोर्ट आई कि जो स्टेट फाइनेंसेस है ना वो इंप्रूव हो गए फॉर सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। एको ने पार्टनर किया फोन पे के साथ टू सेल कार एंड बाइक इंश्योरेंस। इन अ वर्ल्ड्स फर्स्ट चाइनाज मीथेन पावर्ड रॉकेट जूक 2 लॉन्च किया गया था। किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, लैंडस्केप के द्वारा, और ये पहली कंपनी बन गई इन द वर्ल्ड टू लॉन्च रॉकेट यूजिंग लिक्विड मीथेन। देन फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन्होंने एक बुक रिलीज की नए भारत का संवेद। इस बुक को ऑथर किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर बात करें इंटरनेशनल माउंटेन्स डे 11 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर को, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को। और यहीं पे याद रखेंगे एंड में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा भगवंत मान सरकार त्वाडे द्वार ये एक स्कीम लॉन्च की गई जो कि एक डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम है जिसपे 43 स्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी टू द सिटीजन्स ऑफ पंजाब। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिट करेंगे। सेकेंड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी, ये कोविड के टाइम पे 2020 में लॉन्च की गई थी ताकि 5 किलोग्राम्स ऑफ फूड प्रोवाइड करा जा सके पर पर्सन पर मंथ। हर महीने हर आदमी को 5 किलोग्राम तक का फूड प्रोवाइड कराने की बात की गई, अनाज प्रोवाइड कराने की बात की गई। बिकॉज कोविड के टाइम पे हमने देखा जॉब चली गई थी, लॉकडाउन लग गया था, किसी के पास जॉब नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे अपने घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो उस टाइम पर फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए, लोगों को हम देखें माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो जाए, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, कमजोरी आएगी, बीमारी हो जाएंगी उनको। तो उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए वो सिचुएशन ना आ सके, तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा कि हर महीने 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन हम प्रोवाइड करा सकें एट सब्सिडाइज रेट, जहाँ पे राइस, व्हीट या ग्रेन्स ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप यहाँ पे जाइए अपना आधा वो राशन कार्ड दिखाइए और यहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आने वाले 5 साल तक यहाँ पे इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ देख सकते हैं इस स्कीम को इनिशियली 2020 में कोविड-19 के टाइम पे लॉन्च किया गया था एंड इट इज ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंट्री ने अभी $44.7 मिलियन का फंड सेटअप किया है टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन उत्तराखंड एंड द हंगर प्रोजेक्ट। बेसिकली जो हंगर प्रोजेक्ट है इसके लिए $44.7 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कराई जा रही है किस कंट्री के द्वारा, तो ये फंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी नॉर्वे के द्वारा टू इंडिया के प्रोजेक्ट जो कि है द हंगर प्रोजेक्ट। यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर बात की जाएगी, लोकल वैल्यू चेन सप्लाई चेन्स को डेवलप करने की बात की जाएगी, जो स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प करने की बात की जाएगी। करेक्ट, तो बेसिकली फूड सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने की बात की जाएगी, उसको हेल्प करने की, सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी विद दिस $44.7 मिलियन। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो फंडिंग प्रोवाइड की गई है, ये आने वाले 3 साल के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड कराई गई है अंटिल सितंबर 2026। नॉर्वे के द्वारा ये फंडिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है।
ठीक है। और इस फंडिंग से हम देखेंगे काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कराए जाएंगे। तो राइट ऑप्शन बनता है नॉर्वे का एड आया फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि है $44.7 मिलियन का और आने वाले 3 साल के लिए रहेगा। और किस लिए है? द हंगर प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, किस चैनल ने अभी कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? तो कौन सा चैनल है? वो है कलर्स। कलर्स चैनल जो आपका वाईकॉम 18 का चैनल है एंड इंडियाज लीडिंग हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कलर्स, इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। और किस लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया? ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा सके एंड जो गर्ल चाइल्ड अबेंडमेंट होता है, जो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है बच्चों को, राइट, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करने की बात की गई। लड़कियों को भी पढ़ाने की बात की गई, लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए उनको, मतलब जैसे हम लड़कों को ट्रीट करते हैं सिमिलरली बिल्कुल वैसे यहाँ पर लड़कियों को भी सारे राइट्स उनके प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। अब कलर्स कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि एक चैनल है तो ये सोशल ड्रामा इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा एक, जो कि है डोरी के नाम से, जो कि एयर किया जाएगा 6 नवंबर 2023 से। तो इससे रेज की जाएगी अवेयरनेस अबाउट द गर्ल चाइल्ड अमेंडमेंट थ्रू द लेटेस्ट सोशल ड्रामा जो कि है डोरी। फिर इसी के साथ याद रखेंगे एक 24 आवर इमरजेंसी टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1028। इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये चैनल ने कोलैबोरेट किया और ये चैनल का आपका हेल्पलाइन नंबर एड्स के दौरान ड्यूरिंग द शो ये सारा शोकेस किया जाएगा ताकि जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको इसके बारे में अवेयर किया जा सके। ठीक है, तो 1098 हेल्पलाइन नंबर है। एंड डोरी यहाँ पर एक सोशल ड्रामा शो लेटेस्ट लॉन्च किया जाएगा कलर्स चैनल पे। और पूछा जाए तो किस चैनल ने कोलैबोरेट किया? तो कलर्स ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पहली बार इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च किया गया था? 2015 में ये इनिशिएटिव आया था, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो वीमेन एम्पावरमेंट है, उस पर काम किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी स्वीडन की एक कंपनी है साब, करेक्ट। स्वीडन की कंपनी साब एबी, ये वो पहली इंडिया की कंपनी बनी जो पहली कंपनी बनी इन इंडिया जिसमें 100% एफडीआई अप्रूव किया गया है इन डिफेंस सेक्टर। आई रिपीट, स्वीडिश डिफेंस कंपनी Saab AB has become the first foreign company to get Government of India's approval for 100% foreign direct investment in defense sector। और ये जो वैल्यू रहेगी इस एफडीआई की वो कितनी है? 500 करोड़ रुपए। इस इन्वेस्टमेंट से, इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से साब ये कंपनी क्या करेगी? ये रॉकेट लॉन्चर बनाएगी इंडिया में। और कौन से रॉकेट लॉन्चर? कार्ल गुस्ताफ M4। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में करेगी और इसी के लिए यहाँ पे 100% एफडीआई अप्रूव किया गया है। तो मार्क करके चलेंगे, साब एबी कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की कंपनी है। स्टॉकहोम स्वीडन में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। माइकल जोहानसन चीफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट रहेंगे, करेक्ट। इनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिल गया फॉर 100% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। और यहाँ पे 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ताकि कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक MOU साइन किया NRW.Global Business के साथ टू इस्टेब्लिश अ लॉन्च पैड इन जर्मनी? एक लॉन्च पैड प्रोग्राम लॉन्च किया गया जर्मनी में, जहाँ पे इंडिया के जो टेक स्टार्टअप्स हैं ना, उनको बहुत, जो स्मॉल टेक स्टार्टअप्स हैं, जो स्मॉल टेक बिजनेसेस हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर वो जर्मनी यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर इनको 180 दिन का फ्री ऑफिस स्पेस भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा, रेंट फ्री ऑफिस स्पेस रहेगा, राइट। स्मॉल इंडियन टेक स्टार्टअप्स को जो कि जर्मनी में अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो इसी के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी NRW.Global Business के साथ एक MOU साइन किया? वो रहेगा नासकॉम। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, दहन प्राइज ये अभी पंजाबी लिटरेचर में दिया गया, किनको दिया गया? दीप्ति बबूता। ये पहली वीमेन बनी जिनको दाहन प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर पंजाबी। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगोर वॉट। ये एक एंशियंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स रहेगा, कंबोडिया में है, 12th सेंचुरी में बनाया गया था किंग सूर्यवर्मन II के द्वारा। 30 साल लगे थे इसको बनाने में। एंड अंगोर वॉट ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1992। मूविंग ऑन,
इंडिया ने अभी साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डीपन कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विद विच नेशन। तो किस नेशन के साथ मिलकर इंडिया ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई। तो इंडिया ने किसके साथ किया ये कोऑपरेशन? यूरोपियन यूनियन के साथ। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करेंगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि कई सारी वर्कशॉप्स होंगी, पार्टनरशिप होगी, नॉलेज शेयर होंगी, जिससे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड इन दोनों के बीच में हम जानते हैं जो ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, चाहे आपका वो फ़ोन हो, चाहे ईयरबड्स हो, लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो, इवन गाड़ियाँ हो, ड्रोन्स हो, हर जगह आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वहाँ पे ये सेमीकंडक्टर चिप्स को यूज़ किया जाता है। एंड इसका आने वाले टाइम में हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इसी इकोसिस्टम को, इसी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिया और यूरोपियन नेशन के इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पर ये MOU साइन हुआ। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स रहेंगे और यूरो यहाँ पे करेंसी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस भी बोलते हैं। 26 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। 26 नवंबर को ये कहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था एंड इसको लागू करा गया कब? 26 जनवरी को, राइट। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो अगर हम बोले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी को, बन के रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर को, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया था हमने? 26 नवंबर 2015 को बनाया गया था, राइट। मार्क करके चलेंगे। एंड 2015 ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर को भी ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जो अगर मिल्क की बात करें तो फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन कौन है? वो है डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन आपके मिल्क से ही सिंबलाइज रहता है। तो वर्गीस क्यूरिन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन की बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे, और 26 नवंबर को हमने ये ऑब्जर्व किया गया। और 10th नेशनल मिल्क डे इस बार हमने ऑब्जर्व किया, और इनका 102nd बर्थ एनिवर्सरी थी वर्गीस क्यूरिन की 2023 में। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 75th NCC रेजिंग डे। 26 नवंबर को ये डे हमने ऑब्जर्व किया। एंड NCC रेजिंग डे को जनरली सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 4th संडे ऑफ नवंबर, राइट। एंड NCC का जो कमिटमेंट है करेक्ट शेपिंग द यूथ एंड कोर वैल्यूज को इम्पार्ट करने के लिए, उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 4th संडे को ऑफ नवंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार ये 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। 75th रेजिंग डे था, और इसको NCC डे के नाम से भी। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच स्टेट इम्पैनलमेंट्स महालक्ष्मी स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री ट्रेवल टू वीमेन इन बसेस। एक चीज़ और, आज की वीडियो में 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, और मैं चाहता हूं जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी यहां पे कमेंट करें। नेक्स्ट, लाल दुहोमा ये भी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, किस स्टेट के या यूटी के? और एक चीज़ और, जिस स्टेट के और यूटी के वो बने हैं उन्होंने किसको सक्सीड किया है वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तीसरा, आरबीआई ने अनाउंस कर दिया यूपीआई पेमेंट लिमिट फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, मतलब हॉस्पिटल्स में। एंड अगर आपको एजुकेशन सेक्टर, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, फीस प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे 1 लाख रुपए से लिमिट बढ़ा के कितनी अमाउंट कर दी है। चौथा, शेयरिंग टाशी, इनको भी न्यूज़ में देखा गया था, ये किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड है और इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली। उस अवार्ड का नेम भी बताओ मुझे नीचे कमेंट में। फिफ्थ, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने अप्रूव किया एक ट्रीटमेंट फॉर विच डिजीज बेस्ड ऑन CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इन एन इंटरेस्टिंग वे। एंड नीचे कमेंट करके भी बताना अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं हम डेली बेसिस पे ऐसा सेशन लाते रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.